ایک گاؤں میں رامو نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی بہت ہی اچھا اور سشیل تھا۔ وہ روز شام کو اپنے کھیت پر کام کر کے واپس گھر آ جاتا تھا۔ روز کا وہ یہی کام کرتا تھا، جس سے کیا ہوتا تھا، اس کا کھیت جو بہت ہی اچھا اور سندر دکھتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کھیت سے واپس آ رہا تھا تو گھنے جنگل سے گزرنا ہوتا تھا۔ اس جنگل میں کہا جاتا تھا کہ بہت سے جنگلی جانور رہتے تھے اور ایک چڑیل بھی رہتی تھی، مگر وہ رامو اس بات کا کسی کا بھی وشواس نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ آ رہا تھا تو کوئی اسے پیچھے سے آواز دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے، اس کے سامنے ایک چڑیل پرکٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اور رامو کہتا ہے، تم کون ہو؟ رامو ڈرنے لگتا ہے۔ اس کے لمبے لمبے دانت تھے اور لمبی لمبی چوڑی چوڑی آنکھیں تھی۔ رامو کہتا ہے، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے جانے دو۔ اتنا سنتے ہی چڑیل کہتی ہے، میں یہاں کی ون کی رکشا کرتی ہوں۔ اگر کوئی یہاں سے لکڑی کاٹنے آتا ہے یا تو میں اسے بھسم کر دیتی ہوں یا کھا جاتی ہوں۔ رامو کہتا ہے، میں تو اپنے کھیت سے واپس ہو کر یہاں سے گزر رہا تھا، میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ چڑیل کہتی ہے، تمہاری غلطی ہے یا نہیں ہے، پر تمہیں میں جانے نہیں دوں گی۔ میں تمہیں یا تو بھسم کر دوں گی یا تو میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ رامو کہتا ہے، مجھے جانے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا گھر بھی بہت چھوٹا ہے۔ میں تو خود روز محنت کر کے پیسہ کما کے اپنے گھر کا گزارا کر رہا ہوں۔ چڑیل کہتی ہے، تم مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ چڑیل کہتی ہے، اگر میں نے تمہیں نہیں کھایا تو تم گاؤں میں میرے بارے میں بتا دو گے اور گاؤں والے مجھے پریشان کرنے لگیں گے۔ رامو کسان کہتا ہے، میں بہت اچھا ہوں، میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہوں گا، پر تم مجھے جانے دو۔ چڑیل کہتی ہے، نہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ دن یہاں ہی پہ رکنا پڑے گا۔ دیکھو سامنے میرا گھر ہے، میں اسی گھر میں رہتی ہوں۔ رامو کہتا ہے، نہیں، اگر میں گھر نہیں گیا تو میرے گھر والے بہت پریشان ہو جائیں گے۔ چڑیل کہتی ہے، اگر تمہیں میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں بھسم کر دوں گی۔ رامو کہتا ہے، یا تو تم مجھے مار دو یا پھر مجھے جانے دو۔ اگر میں نہیں گیا تو میرے گھر والے مجھے بہت پریشان ہو جائیں گے اور جس سے بھی ڈھونڈنے یہاں پر آ جائیں گے۔ چڑیل کہتی ہے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا کے دکھاؤ، اگر تم جاؤ گے تو میں تمہیں بھسم کر دوں گی۔ رامو کہتا ہے، چڑیل کہتی ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، پر تمہیں مجھے ایک کہانی سنانی پڑے گی۔ تو رامو کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ رامو کہانی سناتا ہے، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، ہاتھ لگا ڈر جائے گی، 2 دن باہر نکالو مر جائے گی۔ چڑیل کہتی ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ رامو کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں بڑی کہانی سناؤں گا کل کو، مگر تم مجھے ابھی جانے دو۔ چڑیل کہتی ہے کہ میں تم سے کچھ سوال پوچھتی ہوں، تمہیں اس کا اتر دینا ہے، اگر تم نے اس کا صحیح سے اتر دے دیا تو تم یہاں سے چلے جانا۔ رامو کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ رامو کہتا ہے، ٹھیک ہے، تم مجھ سے کچھ پہلی پوچھو۔ چڑیل کہتی ہے، میں تم سے پہلی نہیں پوچھ رہی ہوں، پر میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ پھر چڑیل کہتی ہے، تم یا تو مجھے کوئی گانا سناؤ اچھا سا، یا پھر مجھے کوئی کویتا سناؤ تو، یا پھر مجھے کوئی کہانی سناؤ تو۔ رامو کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک گاؤں میں 4 متر رہتے تھے۔ وہ متر بہت ہی ایماندار اور سشیل تھے، مگر وہ اپنے گرو سے ودیا سیکھ رہے تھے۔ جب انہیں کچھ سال بیت جاتے ہیں تو ان کی ودیا پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ سب اپنے گاؤں چلے واپس لوٹ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ دن بتاتے ہیں۔ جب انہیں کچھ سمے ہو جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں، کیوں نہ ہم کہیں باہر جا کے اپنی ودیا کا استعمال کریں اور اس سے کچھ پیسہ کما کے اپنے گاؤں واپس آ جائے۔ تو ان میں سے ایک متر کہتا ہے کہ نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں پہ رہیں گے۔ اور ان کے تینوں متر کہتے ہیں، اسے یہیں رہنے دو، ہم تینوں چلتے ہیں۔ مگر وہ چاروں پھر چلے جاتے ہیں۔ راستے میں جیسے ہی وہ جا رہے تھے تو انہیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں تو ایک
ढांचा हड्डियों से लदा हुआ पड़ा था। वे देखकर सोचते हैं क्यों ना हम अपनी विद्या का इस्तेमाल इस ढांचे पे करें। तो एक विद्यार्थी के पास ऐसी शक्ति थी कि वो ढांचे में जान डाल देता था, और एक मित्र के पास ऐसी शक्ति थी कि वो ढांचे पे खाल डाल देता था, और एक मित्र के पास ऐसी शक्ति थी कि वो ढांचे को इकट्ठा कर देता था, और एक मित्र के पास ऐसी शक्ति थी कि वो ढांचे को जीवित कर देता था। तो शुरू में एक मित्र ने जैसे ही अपनी शक्ति का मंत्र मारा तो वो ढांचा जुड़ गया। फिर दूसरा मित्र ने जैसे ही अपनी शक्ति का मंत्र मारा तो उस ढांचे पे खाल आ गई, और तीसरे ने जैसे ही अपनी शक्ति का मंत्र मारा तो उस ढांचे में मांस आ गया। और चौथे मित्र ने कहा, सुनो, तुम अगर इसे जीवित करना चाहते हो तो मुझे पहले पेड़ पे चढ़ जाने दो। तो जैसे ही तीसरे मित्र जो था उसने मंत्र मारा तो उसमें जान आ गई। देखते ही देखते वो ढांचा शेर में बदल गया, और उस शेर ने उन तीनों को मार दिया। और उसका चौथा मित्र जो पेड़ पे बैठा था वो बहुत दुखी था, और जब शेर वहाँ से चला जाता है तो वह मित्र उतरता है और अपने घर वापस आ जाता है। तो बच्चों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी सही लगी है तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सुहेल कहती है, ये कहानी तो बहुत छोटी थी, मुझे कुछ बड़ी कहानी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। रामू कहता है, मेरे पास सिर्फ यही कहानी थी, मुझे और याद नहीं है, तुम मुझे जाने दो, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा सुनकर चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और रामू को कहती है, अगर तुम जीना चाहते हो तो मुझे एक कहानी और सुनाओ। रामू कहता है, ठीक है। एक किसान था, वो अपना खेत जोत रहा था। तभी अचानक से कहीं से भालू आ जाता है। भालू को देखकर किसान डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो? भालू कहता है, मैं भालू हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान कहता है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगा। भालू कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ये बताओ क्या बो रहे हो? किसान कहता है, मैं इसमें अनाज बो रहा हूँ। भालू कहता है, जो इसमें तुम बो रहे हो मुझे उसका ऊपर का हिस्सा चाहिए। किसान कहता है, ठीक है। किसान उसमें आलू बो देता है। आलू बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, और भालू आता है। भालू कहता है, ठीक है, अभी तुम इसे उखाड़ो। तो किसान के पास आलू चले जाते हैं नीचे के, और भालू के पास पत्ते पत्ते। भालू खाकर चकरा जाता है और परेशान हो जाता है। फिर भालू कहता है, जो तुम इसमें बो रहे हो मुझे उसके नीचे का भाग चाहिए। किसान कहता है, ठीक है। किसान फिर उसमें गेहूँ बो देता है। जैसे ही गेहूँ बड़े होते हैं और कटने वाले होते हैं तभी भालू आता है और कहता है, अब मुझे नीचे का भाग चाहिए। तो किसान जब गेहूँ गंवाता है तो उसे मिलता है भूस और उसे मिलता है गेहूँ। तो भालू फिर चकरा जाता है। तो बच्चों, अगर तुम्हें कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो यह कहती है, मुझे कहानी में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। रामू किसान बहुत दुखी हो जाता है और चुड़ैल से कहता है, अब तो मैंने तुम्हें 2 कहानी सुना दी है, अब तो तुम मुझे जाने दो। चुड़ैल कहती है, नहीं, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा और इस वन की रक्षा करनी पड़ेगी मेरे साथ। यहाँ पे बहुत से लकड़हारे आते हैं और लकड़ी काट के चले जाते हैं, और कुछ शिकारी भी आते हैं जो शिकार को मारते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। मैं अब चाहती हूँ यहाँ पे कोई नहीं आए, ना ही कोई लकड़हारा आए और ना ही शिकारी आए। रामू कहता है, तुम्हारे पास तो शक्ति है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं फिर यहाँ कैसे करूँगा? तो चुड़ैल कहती है, मैं तुम्हें शक्ति दे सकती हूँ, मगर तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा। रामू कहता है, मुझे जाने दो, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। चुड़ैल उसे एक कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते मेरी मर्जी के बिना,
तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। रामू कहता है मैं तो रोज़ शाम को यहाँ से गुजरता था, मुझे क्या पता यह तुम्हारा इलाका है। अगर अब मुझे पता चल गया है तो मैं अब कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। चुड़ैल कहती है अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम ये बातें गांव वालों को बता दोगे और गांव वाले मुझे परेशान करके बहुत परेशान करेंगे। रामू कहता है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और ना ये कहूँगा कि उस वन में कोई जाना, बात सबको मैं मना कर दूंगा। चुड़ैल कहती है तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं तुम इंसानों को जानते हो, तुम इंसान बहुत ही हरामी होते हो और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ाई करते हो। तो रामू कहता है मुझे जाने दो प्लीज़। चुड़ैल कहती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें कुछ दिनों यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये मेरा सामने घर है और घर भी बहुत अच्छा है, ये जादुई घर है, यहाँ तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी खाना है तुम्हें मन से कहना है और यहाँ से प्रकट हो जाएगा। इस पेड़ पर मैं रहती थी, जो भी यहाँ से गुजरता था मैं उसे ऊपर टांग कर मार देती थी, मगर तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम अब तक जीवित खड़े हो। रामू कहता है मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं भगवान जी की पूजा करता हूँ, मैं ऐसे नहीं मर सकता। चुड़ैल कहती है तुम इतना घमंड दिखा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम मुझे अभी जानते नहीं, तुम मेरी शक्तियों को अभी पहचानते नहीं। रामू कहता है तुम्हें ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे जाने दो। चुड़ैल कहती है मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही थी कि तुम रोज़ यहाँ पे आते और चले जाते थे, मैं तुम्हें जाने कब का ख़त्म कर देती, पर मैं सोचती थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ रखा है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी ख़त्म करके यहीं पे दफना सकती हूँ। रामू कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे घर के बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे। चुड़ैल कहती है बनो मत, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ यहीं पर रुकना पड़ेगा, 2-4 दिन की बात है, फिर अपने घर चला जाना। रामू कहता नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारा क्या भरोसा, क्या पता कल के दिन तुम मुझे मार दो। चुड़ैल कहती है हम चुड़ैल हैं, मैं कभी झूठ भी नहीं बोलती। रामू कहता है तुम झूठ बहुत बोलते हो, तुम्हारा क्या पता तुम्हारे लंबे लंबे दांत हैं, क्या पता तुम मुझे खा जाओ। और रामू बहुत रोने लगता है। चुड़ैल कहती है रो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। रामू कहता नहीं मुझे अपने घर जाना है। चुड़ैल कहती है तुम चुप रहे हो या मैं तुम्हें खा जाऊँ। इतने में ही रामू चुप जाता है। चुड़ैल कहती है सुनो मेरी बात, तुम्हें 2-4 दिन की बात है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें 5वें दिन तुम्हारे घर छोड़ आऊँगी। रामू कहता है ठीक है, मगर मुझे मुझे खाना मत। चुड़ैल कहती है ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगा।